चलो, very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. Just close the door and sit erect, everyone. सभी लोग erect बैठे हैं, straight बैठे हैं, and just try to focus on, because we are going to complete one of the most important chapters, carrying at least around 15 marks weightage in a secretarial practice paper. So welcome you all again to the revision series, where I had promised you 24 घंटे में खेल खत्म, तो उसी खेल को खत्म करना है. अब तक हम 1 घंटा हमारा निकाल चुके हैं, तो अब हमारे पास बचे 23 घंटे. अब बचे हुए 23 घंटे में हमें हमारा पूरा जो खेल है एसपी का, पूरा जो सिलेबस है, इसे खत्म करना है. इसी टारगेट के साथ आगे बढ़ते हैं. आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जो कि है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. अंडर दिस चैप्टर विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम वेयर द कंपनी ट्राइज टू प्रोक्योर or raise finance, right? The entire 12th standard secretarial practice paper is all about corporate finance, and corporate finance deals with two main decisions: financial decisions and investment decision. Financial decision is all about raising of the capital, and investment decision is all about investment or application or utilization of the capital which is being raised. जो capital financial decision में raise हुआ है, उसका investment decision, yes or no? Yes or no, right? So I welcome you all to yet another session of secretarial practice revision. So without wasting any further time, let's us start with things. Let me put up a timer before we start with things. अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते वक्त किसी को डाउट पूछने की इजाजत नहीं है. अगर आपको कुछ पूछना करना है तो सेशन के लास्ट में आप पूछ सकते हैं. चलो शुरू करें. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, sources of finance. Yes, chapter number 2, sources of corporate finance. So corporate finance is all about two decision: financial decision, financing decision, and investment decision. Financing decision is all about procuring or raising of the capital. Investment decision talks about the utilization of the capital which is being raised. Yes or no? Right? Now under this particular chapter of sources of finance, we are going to deal with the first function of the corporate finance, that is financing decision. Under financing decision, we are talking about how a capital is raised in a company. How a capital is being raised in a company, yes or no? How a capital is being raised in a company, right? So in this particular chapter, we are going to learn what are the different sources from where the company can raise the capital. What are the different sources from where the company can raise the capital? Let's look into the introduction. Finance holds a key to business activities. As we have learned in the previous chapter, that for any business, the arms and legs are the finance. If we don't have arms and legs, can we work properly? We'll be physically handicapped and we'll be not capable of many things in life. Yes or no? In the same manner happens with business. For any business, the arms and legs are the finance. If this is not proper, nothing is going to work out. No business activity can never be pursued without financial support. No business activity can ever be pursued without financial support. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या बिना फाइनेंस के कैरी आउट नहीं की जा सकती. जैसे हमने देखा, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एक्टिविटीज है. प्रोडक्शन एक्टिविटी, R&D एक्टिविटी, मार्केटिंग, सेल्स और अकाउंट, फाइनेंस, ये सभी बहुत सारे एक्टिविटीज एक बिजनेस के अंदर कैरी आउट की जाती है. इन सभी एक्टिविटीज में सबसे मेन एक्टिविटी है फाइनेंस. वो ऐसी एक्टिविटी है जो सभी एक्टिविटी को जोड़ के या कनेक्ट रख के उनके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सभी चीजों को आगे लेके जाता है. क्योंकि फाइनेंस है तो प्रोडक्शन होगा, फाइनेंस है तो सेल्स होगा, फाइनेंस है तो मार्केटिंग होगी, फाइनेंस है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा. इसीलिए फाइनेंस जो है वो की होल्ड करता है इन द एंटायर बिजनेस एक्टिविटी. फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ द प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड regular operations of the business. Right from setting up the business, I have a business idea. If I want to set up a business, I need capital, I need finance. आफ्टर सेटिंग अप द बिजनेस हो गया कि बाद में पैसा नहीं लगता है क्या? नहीं. डे टू डे बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए कैपिटल लगता है, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल. बिजनेस को सेटअप करने के लिए, पहले चैप्टर में देखा था, बिजनेस को सेटअप करने के लिए, शुरू करने के लिए जो हमें पैसा लगता है वो है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, और बाद में उसी बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए जो पैसा हमें लगेगा वो है हमारा वर्किंग कैपिटल. ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस. अल्टीमेटली फाइनेंस है तो बिजनेस है, फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस नहीं है. यस और नो? हाँ या ना? नाउ द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, right? The sources of owned capital. Now
सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, when we talk about sources of finance, the sources of finance are either owned capital, either it is borrowed capital, yes or no, either it is owned capital, either it is borrowed capital. जो खुद का पैसा है वो क्या है, ओन्ड कैपिटल. जो दूसरों से लिया गया है वो क्या है, बोरोड कैपिटल. मुझे इडली की दुकान चालू करनी है, उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है. इस 1 लाख रुपए में 50 रुपए में मेरी सेविंग इन्वेस्ट कर रहा हूँ. दिस इज माय ओन्ड कैपिटल. बचे हुए 50,000 मैंने विनय से उधार लेकर बिजनेस में लगाए हैं. सो आई हैव बोरोड दिस 50,000, बैलेंस 50,000 फ्रॉम विनय. I have to repay it to Vinay. So this is my borrowed capital. The capital which is to be repaid is nothing but your borrowed capital, right? The capital which is not to be repaid because it is the owner's funds, hence it is called as owned capital. So sources of finance दो है, एक होगा owned funds, दूसरा होगा borrowed funds. फाइनेंस को रेज करने के दो ऑप्शंस है जो तय करता है कैपिटल मिक्सचर ऑफ अ कंपनी. फाइनेंस का कैपिटल मिक्सचर और कैपिटल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, कैपिटल मिक्स या कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दर्शाता है कि पूरे कैपिटल के अंदर कितना डेट है, कितना इक्विटी है. कितना डेट है, कितना इक्विटी है. द डेट इक्विटी मिक्स स्टेट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एंड डेट एंड इक्विटी मिक्स इज स्टेटेड एज पर द सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल एंड सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल. कंपनी में कितना ओन कैपिटल है, कंपनी में कितना बोरोड कैपिटल है, इसके हिसाब से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी का बनता है. हाँ या ना, राइट? जो पैसा खुद का है, ओनर का है, जो बिजनेस में लगाया है वो क्या है, हमारा ओन कैपिटल. जो पैसा आपने बोरो किया है, बिजनेस में लगाया है, किसी और से लिया है, बिजनेस में लगाया है, वो क्या है बेटा, मेरा बोरोड कैपिटल. मेरे एग्जांपल में जो 50 रुपए मैंने मेरे शॉप में लगाया वो मेरा ओन कैपिटल. जो 50 रुपए मैंने विनय के पास से लिया दैट इज माय बोरोड कैपिटल. यस और नो? हाँ या ना, राइट? नाउ देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. द टू मेजर सोर्सेस बीइंग ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. द टू मेजर सोर्सेस बीइंग own capital and borrowed capital. Now let's try to talk about the sources of own capital. Now what is own capital? The owner's fund which is invested in the business is called as own capital. जो कंपनी का खुद का पैसा है जिसे रिपे करने की जरूरत नहीं होती, राइट? उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ओन कैपिटल. क्या कहते हैं उसे, ओन कैपिटल. एज वी ऑल नो दैट ओन कैपिटल कैन बी रेज्ड विद टू सोर्सेस. वन इज शेयर कैपिटल, अनदर इज रिटेन्ड अर्निंग्स. ओन कैपिटल को रेज करने की दो सोर्स है कंपनी के पास. एक होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स. ओन कैपिटल को रेज करने के दो तरीके हैं, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. शेयर कैपिटल को रेज करने के दो तरीके हैं. एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स. एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स. रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन उन्हीं कंपनी के लिए अवेलेबल है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है. एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन नहीं होता. कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है उस प्रॉफिट में से जब वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बाजू में रखेगी ताकि अपने फाइनेंस की नीड्स को मीट अप कर सके. वो जो पैसा उन्होंने प्रॉफिट में से बाजू में रखा है दैट इज नथिंग बट द रिटेन्ड अर्निंग्स. नाउ व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग्स? Retained earning is a part of the profit which is kept aside for meeting up the financial needs of the company. Yes or no? Right? So ये क्या हुआ, own capital. Own capital के दो सोर्स है, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन किसे है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है. न्यू कंपनी जो अभी एस्टैब्लिश हुई है, उन्होंने कुछ ऑपरेशन नहीं किया तो उनका प्रॉफिट का कोई सवाल पैदा नहीं होता और उसमें से बाहर निकालने का कोई सवाल नहीं होता. तो न्यू एस्टैब्लिशमेंट के लिए रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन नहीं होता. उनके पास ओन कैपिटल का एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल जो है दो तरीके से रेज किया जा सकता है. एक होगा इक्विटी शेयर, दूसरा होगा प्रेफरेंस शेयर. अभी ओके? Now what is the meaning of owned capital? The capital raised by the company with the help of the owners, that is either shareholders, is called as own capital or ownership capital. जो सही मालिक, जो सही ओनर होंगे, जिनकी मदद से कंपनी में कैपिटल रेज होगा, दैट इज नथिंग बट द ओन कैपिटल. अब इडली की दुकान है, वो दुकान मेरी है. उस इडली की दुकान में मैं मेरी जेब से 50 रुपए लग रहा हूं, तो आई एम द ओनर. आई एम डिप्लॉइंग माई ओन फंड्स इन द बिजनेस. So whatever my own funds I am deploying in the business to start up the business is nothing but my own capital, right? But Vinay is not the owner of the business. Vinay is someone, other person or third party who is giving me or lending me money. So his money is borrowed capital. Yes or no? हाँ या ना, right? चलिए अगले मुद्दे पे.
So as we have learned that the owned capital has two sources. One is share capital, another is retained earnings. Now let's talk about shares. The smallest part of the capital is called as shares. The smallest part of the capital is called as share. For example, रिलायंस को 100 करोड़ रुपए रेज करने हैं, तो 100 करोड़ के लिए कोई एक अकेला ओनर तो रेज नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करते हैं, इस 100 करोड़ के कैपिटल को 100 रुपए के शेयर में डिवाइड करते हैं, 100 रुपए के शेयर में डिवाइड करते हैं। तो 100 रुपए के शेयर को डिवाइड करते हैं पूरे 100 करोड़ को, तो 100 करोड़ 100 करोड़ डिवाइड बाय 100, दैट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स विच विल बी इशूड बाय द रिलायंस कंपनी। ये कंपनी इतने सारे शेयर्स इशू करती है और आप हम जैसे जो इन्वेस्टर्स है ये शेयर्स को खरीदते हैं। नाउ व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? योर कंट्रीब्यूशन इज इनटू द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल, दैट इज शेयर ऑफ द कंपनी। पूरा कैपिटल कितना है? 100 करोड़, लेकिन उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एक सिंगल शेयर जिसकी कीमत कितनी है? 100 रुपए, जिसकी कीमत कितनी है? 100 रुपए। So the smallest part of the capital is nothing but the share capital. Now this share capital can be raised with two sources, either equity shares or preference shares. Before moving on to what is equity shares, before moving on to what is preference shares, first we also discuss what are the features of shares. Shares की features क्या है, right? Now what is the shares? Shares क्या है? Shares को issue कैसे करते हैं? Shares कितना issue कर सकते हैं ये सब आपको पता है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है जो दर्शाता है कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। जितना कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल होगा उतने लिमिट तक ही कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी को शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, कंपनी एक तो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है या फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। इक्विटी शेयर्स को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स के डिस्कशन पे हम आगे आएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर। शेयर विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल, the smallest part of the capital or the micro part of the capital which is share, उसके जो features है पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। Now what is share capital? Share capital is the own capital or owner's capital। अभी हम देख रहे हैं sources of finance, किस तरह से फाइनेंस रेज किया जा सकता है। फाइनेंस रेज करने के लिए दो हेड्स है, either owned either borrowed। owned के अंदर पहला ऑप्शन क्या है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के पहले हम फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मीनिंग तो हमने समझा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज नथिंग, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर कैपिटल इज नथिंग बट द शेयर। 100 करोड़ की इस पूरे कैपिटल का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एक शेयर जिसकी कीमत है 100 रुपए। सो दैट इज नथिंग बट योर शेयर ऑफ अ कंपनी। सो पूरे 100 करोड़ की कंपनी की जो ओनरशिप है उसमें मेरा शेयर कितना है? 100 रुपए। उसमें मेरा कितना शेयर है? 100 रुपए। अगर मैंने 10 शेयर खरीदे तो मेरा शेयर कितना है? 1000 रुपए। अगर मैंने 1000 शेयर खरीदे तो 10,000 रुपए। तो उस हिसाब से हमारे, अगर मैंने 10,000 खरीदे तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए, 10 लाख रुपए। तो जैसे जैसे मेरे शेयर्स बढ़ेंगे वैसा वैसा मेरा कंट्रीब्यूशन कैपिटल में और मेरी कंपनी में ओनरशिप बढ़ती जाएगी। समझ में आया? किसकी ओनरशिप कंपनी में कितनी है ये कैसे तय होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्स ही होल्ड्स इन द कंपनी। अगर मान लो मेरे उसी रिलायंस कंपनी में 50 करोड़ के शेयर है तो रिलायंस कंपनी का 50% मालिक मैं अकेला हूं, राइट? नाउ दिस 50% ओनरशिप is tagged with me on the basis of the shareholding I have in the company. Yes or no? हाँ या ना? Right? Next, ownership. Ownership lies with the shareholders. The ownership of the company lies with the shareholders of the company. The shareholders are the true owners of the company because they contribute to the capital, because they contribute to the owned capital. Do they contribute to the borrowed capital which is to be repaid by the company? No. They are contributing to the owned capital which hasn't had to be repaid, and they are the ultimate risk bearers. They are the ultimate risk bearers. As we all know, equity shareholders are residual claimants. अगर कंपनी का कुछ हो जाता है, बाद में कुछ बचा खुचा, तो कंपनी के जो कुछ भी बचा खुचा है उसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ भी कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट ट्रू ओनरशिप लाइज विद द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। डिस्टिंक्टिव नंबर, एवरी शेयर विच इज बीइंग इशूड बाय द कंपनी कैरीज अ डिस्टिंक्टिव और अ डिफरेंट नंबर। यानी हर शेयर का जो नंबर है वो डिस्टिंक्टिव है, डिफरेंट है। एविडेंस ऑफ टाइटल, every shareholder who's holding the smallest part of the capital, that is share, has a evidence of title with the help of share certificate which is being issued to the member. हर मेंबर जो कंपनी में शेयर्स होल्ड करता है उसके पास एविडेंस ऑफ टाइटल के बतौर क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट, राइट? नाउ आई हैव जस्ट रिटन द पॉइंट्स ओवर हियर। अगर आप टेक्स्ट बुक किसके पास है, अगर मैं बोलते हो कहीं किसी पॉइंट में चूक जा रहा हूं
या कहीं कुछ मिस हो रहा है या कुछ गलत बोलने में आ रहा है तो मुझे उतना टैली करना, क्योंकि मेरे पास पूरी टेक्स्ट बुक तो याद नहीं मुझे, तो मेरे को जो हेडिंग दिख रहा है उसके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं जो समझा रहा हूँ और वो टेक्स्ट में दिया अगर वो कहीं मैच नहीं कर रहा तो मुझे सिर्फ हाथ रेज करके बता देना, ठीक है। एविडेंस ऑफ टाइटल में शेयर सर्टिफिकेट ही है, राइट। द एविडेंस ऑफ टाइटल इज प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ शेयर सर्टिफिकेट विच इज बीइंग इशूड अगेंस्ट द शेयर विच आर बॉट इन अ कंपनी। मैं अगर कंपनी में 10 शेयर खरीदता हूँ तो उसके बदले एविडेंस ऑफ टाइटल क्या रहेगा, वो शेयर सर्टिफिकेट जो बतलाएगा कि मैं कंपनी के 10 शेयर होल्ड करता हूँ। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ शेयर। Now the value of the share can be defined as the face value, issue price and market value. The value which is mentioned on the share certificate is called as face value. जो शेयर की वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन है वो क्या है बेटा, मेरी फेस वैल्यू। जरूरी है क्या फेस वैल्यू जो है उसी पे इश्यू वैल्यू हो? नहीं, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। लेकिन मार्केट में रिलायंस जैसे कंपनी का दबदबा ज्यादा है तो उनके शेयर्स की डिमांड होती है, भले ही फेस वैल्यू 10 रुपए है। क्या ऐसे लोग अपने शेयर्स प्रीमियम पे बेच सकते हैं? प्रीमियम का मतलब क्या है, अबव द फेस वैल्यू। whenever company sells its shares above the face value they are charging premium for the goodwill, they are charging premium for the goodwill. So the price which is charged above the face value, which is charged for issuing the shares, is called as issue price, is called as issue price. Yes or no? रिलायंस ने शेयर इशू, रिलायंस ने जो इशू करने का तय किया उसका फेस वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए। लेकिन रिलायंस जैसे कंपनी जिसका गुडविल इतना ज्यादा है मार्केट में, क्या वो फेस वैल्यू से अबव बिकेगा आराम से? यस। क्या वो प्रीमियम पे बिकेगा? यस, राइट। रिलायंस ने जो शेयर इशू करने का तय किया था उसकी फेस वैल्यू उन्होंने 100 रुपए रखी है, लेकिन उनको मालूम है उनके मार्केट में इतनी गुडविल है कि वो शेयर 500 रुपए में भी कोई खरीद लेगा, क्योंकि रिलायंस का नाम है, क्योंकि रिलायंस का नाम है। इसलिए उन्होंने क्या तय किया, अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे और उन्होंने तय किया कि रिलायंस के शेयर को 500 रुपए में बेचना है। सो दे आर इशूइंग द शेयर्स एट द वैल्यू ऑफ 500. सो व्हाट इज इशू प्राइस? 500. व्हाट इज फेस वैल्यू? 100, व्हिच इज प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. आर वी ओके विद द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? यस और नो? रिलायंस ने जो शेयर्स इशू किए उसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए। जब उन्होंने वो शेयर्स इशू किए उसका इशू प्राइस था 500 रुपए। एक साल बाद स्टॉक मार्केट में उसकी कीमत हो गई 1000 रुपए। तभी 1000 जो वैल्यू है ये क्या है बेटा, क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। द करंट ट्रेडिंग वैल्यू ऑफ द शेयर इज नथिंग बट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स. So the values of the shares can be understood either with respect of face value, either with respect to issue price, or either with respect to market value. Yes or no? Yes or no? Right? Now rights. The members or the shareholders hold the rights of the company because they are the ultimate owners of the company. Ultimate owner ही वो है कंपनी के, तो कंपनी में हर अधिकार वो रखते हैं। कंपनी का निर्णय लेने का, कंपनी की दिशा जो है वो तय करने का पूरा अधिकार किसका है? ओनर का है। पैसा मेरा है तो मैं तय करूंगा मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। यस और नो? राइट। सो अल्टीमेटली हु इज द ओनर? द ओनर इज द शेयर होल्डर. So it is shareholder who will be deciding the direction of working of a business or the company in which they are investing. Next, income. They receive income in the form of dividend. They receive the income in the form of dividend. Every shareholder who invests in the company receives the income in two forms. First form is share in the profit which is in the form of dividend. जो कंपनी में व्यक्ति शेयर इन्वेस्ट करता है, जिस कंपनी के शेयर्स में कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है उसे जो इनकम है वो दो तरीके से मिलती है। एक तरीका होता है डिविडेंड, एक तरीका होता है डिविडेंड, राइट, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड में क्या होता है बेटा, जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसके शेयर होल्डिंग के हिसाब से हर शेयर होल्डर को दिया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। मैंने रिलायंस का शेयर लिया जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, जिसका इशू प्राइस था 500 रुपए। मैंने 500 रुपए में खरीदा। एक साल के बाद उसी शेयर को मैंने 1000 रुपए में बेच दिया। मुझे कितने में मिला? इशू प्राइस कितना था? 500। मैंने बेचा कितने में? 1000। सो 500 रुपए का जो ये मुनाफा हुआ ये क्या है मेरा? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट, इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये क्या है मेरा? इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो इस तरह से दो तरीके से शेयर होल्डर को इनकम होती है। एक होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयरिंग इन द प्रॉफिट विच इज डिविडेंड, अदर इट विल बी कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कैसा फाइंड आउट होते हैं काजल?
कैपिटल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होते हैं? कैपिटल प्रॉफिट इज फाउंड आउट with the increase in the market value of the shares, right? Next, transferability. Depending on the type of the company, the shares can be transferred or shares cannot be transferred. If it is a private company which is issuing shares, shares of a private company cannot be transferred. But if it is a public company, shares are easily transferable as a movable property from one person to another. Next, property of the shareholder. Now, share are the property of the shareholder who is holding the same, whose evidence of title is the share certificate which is holding. So it is a property which is a movable property which can be easily transferred from one person to another. Next, kinds of shares. And this share, which forms the smallest part of the capital, can be issued in two forms. Either it is equity shares or either it is preference shares. Either it is equity shares or either it is preference shares. Now let's try to understand the kinds of shares. The kinds of shares are either equity shares or either it is preference shares. Equity shares are further classified as equity shares with voting rights and equity shares with differential voting rights. Next, cumulative. Now when we come to preference shares can be issued either as cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares, redeemable preference shares and irredeemable preference shares. Yes or no? Yes or no? Right? तो अभी आगे एक एक का डिस्कशन करना है, तो टेबल के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं डालूंगा, आगे हेडिंग के हिसाब से एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होना ही है. तो शुरू करते हैं पहले डिस्कशन ऑन इक्विटी शेयर्स. नाउ अगर हम कंपेयर करें प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में, हु आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर्स. क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कंपल्सरीली क्या है बेटा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड लगता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा कोई भी क्लेम नहीं रखता. इज द रेसिडुअल क्लेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. सबको दे दुआने के बाद कुछ बच गया तो वो क्लेम करेंगे. कंपनी को प्रॉफिट हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है तो ही उनको डिविडेंड मिलता है. तो अल्टीमेट रिस्क बियरर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर. हु इज द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर. यस और नो? सो शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस कैपिटल है. अनडाउटेडली द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द कंपनी. The preference shareholders are also the owners of the company, but who are the true owners? Ultimately ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है कंपनी की? इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. Yes or no? Right? So equity shareholders are the true owners of the company. Now first let's try to understand the definition of equity share. तो जब आप डेफिनेशन पढ़ो, इक्विटी शेयर का डेफिनेशन, प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन, डिबेंचर का डेफिनेशन, ये जितने भी टर्म्स है सोर्सेस के, उन सभी के पॉइंट्स के डेफिनेशन ठीक तरह से याद करो. कल मैंने बोला था अगर तुमको एग्जाम में पूछा जा रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, डायरेक्ट फीचर से शुरू मत करो. पहले वहां पे इक्विटी शेयर क्या है उसको डिफाइन करो. पहले क्या है इक्विटी शेयर क्या है उसे डिफाइन करो और उसके बाद उसके फीचर्स लिखना शुरू करो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? राइट. नाउ इक्विटी शेयर्स. द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. They don't have fixed dividend. They don't have any preference if the company has profit. If the board of directors thinks it is necessary to give or declare dividend, then and then only they can get dividend. They cannot claim dividend from the company. They don't have right to say to the board of directors that please declare dividend. Whether to declare dividend or whether not to declare dividend is the right of the board of directors to decide. The equity shares do not have any priority for the repayment of the capital at the time of winding up of the company. They are the residual claimants. सबको दे दुआने के बाद अगर कुछ बच गया तो वो क्लेम करेंगे, अगर कुछ नहीं बचा तो भी वो क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट ओनर कौन है किसी कंपनी का? इक्विटी शेयर होल्डर. यस और नो? राइट. नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस द इक्विटी शेयर हेडिंग इन मोर डिटेल विद द हेल्प ऑफ फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. फर्स्ट, परमानेंट कैपिटल. As I have told you, in India, the preferences which are being issued are compulsorily redeemable preference shares. What do you mean by redeemable? That means which have to be repaid after a particular period. Yes or no? They have to be repaid after a particular period. So हमारे यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर्स है, देखो शेयर कैपिटल के दो ही सोर्सेस है, एक है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स इंडिया में कैसे है? कंपल्सरीली
रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, यानी उनको रिपे करना ही पड़ेगा. तो कैन आई से equity shares is a permanent capital? No. Is it a permanent capital? No. No doubt it is a long term source of finance, but it is not permanent capital. Permanent capital क्या होता है? जो कभी लौटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो क्या प्रेफरेंस कैपिटल परमानेंट कैपिटल हुआ? इज प्रेफरेंस कैपिटल परमानेंट कैपिटल? नो, क्योंकि उसको लौटाना है, बिकॉज इट इज रिडीमेबल इन इंडिया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स, is there any condition about repayment of the equity share capital? No. So undoubtedly equity capital or equity shares are sources of permanent capital. एक बार आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उन शेयर का रीपेमेंट का प्रोविजन कहीं पर भी कंपनीज एक्ट में नहीं है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है बेटा? परमानेंट कैपिटल. नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन डिविडेंड. If the company is generating profit, the board of directors might think to declare dividend. There is no fixed dividend which is to be paid to the equity shareholders. It is the right of the board of directors to decide whether to declare dividend or whether not to declare dividend. Even if in some years the company is making profit and the board of directors is of mind that out of this profit we should have some retained earnings which can be used to meet up the finance need in the future, and we can't declare dividend right now. If they take a decision of not declaring dividend, the members cannot oppose that. We are the owners of the company, you need to declare dividend, because the authority is given to the board of directors to decide whether to declare dividend or whether not to declare dividend, right? So the dividend which is to be paid to the equity shareholder is fluctuating. Is it fixed like the preference dividend? No, it keeps on changing. If the company is making huge profits, they might get huge dividend, but if the company is not making profits, they might not get dividend, and in case of loss there is no case of paying dividend, right? So there is no guaranteed income which is being given to the equity shareholder. There is no guaranteed income which is being given to the equity shareholder. Do the equity shareholder get a guaranteed or a fixed income? No. Fixed income is given only to the fixed dividend is given only to the preference shareholder. Hence यहाँ पे क्या बोला है? They have fluctuating dividend. They have fluctuations in dividend और fluctuating dividend, right? जहाँ पे dividend जो है उनका तय नहीं है, कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी के प्रॉफिट के मुताबिक उनका डिविडेंड का पूरा तय होता है. नेक्स्ट, द राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स. नाउ द इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स हु आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी पोजेस डिफरेंट राइट. अब ये बात भी पता है आपको कि जो व्यक्ति कंपनी की इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर. इफ आई एम होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी, I'll be called as equity shareholder of Reliance. Now this shareholder, being the equity shareholder of the company, I being the equity shareholder of Reliance company, hold some rights by holding these shares. What are the different rights? Right to vote. Every equity shareholder holding shares of the company has a right to vote at every matter regarding the company at the annual general meeting. Annual general meeting is for the members. Members कौन होते हैं कंपनी में? Members are defined by the Companies Act as those person whose name is mentioned in the register of members, whose name is mentioned in the register of members or is a beneficial owner as per the records of the depositories. जो लोग डिमैट फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में शेयर्स को होल्ड करते हैं, they are called as beneficial owners, and these beneficial owners are the members. Yes or no? Right? Now these members or these equity shareholders hold the rights in the company. First point is right to vote. They have authority or right to vote on the different aspects of the company. हाँ या ना? They can vote on every decision of the company which is being taken at the annual general meeting. Right to share in profit. Right to share in profit. Yes or no? Right to share in profit. Right to share in profit क्या बोलते हैं? Every company, if it is declaring dividend, every shareholder or every equity shareholder has a right to claim that profit which is declared. हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर के पास यह अधिकार नहीं है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलने के लिए कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, वो ये नहीं बोल सकता. लेकिन अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर करने का निर्णय लिया है, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, वो डिक्लेयर किया गया प्रॉफिट क्लेम करने का अधिकार हर मेंबर रख सकता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोल सकते कि वे दिनेश सर तुम्हारी हमारी नहीं जमती, हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया फिर भी हम तुमको डिविडेंड नहीं देंगे. ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज एवरी मेंबर हैज अ राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स. नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स. और राइट टू शेयर इन प्रॉफिट कैसा रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर होल्डिंग आई हैव इन द कंपनी.
नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, यू आर द ओनर्स, आप मालिक हो। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो यू आर ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। क्या मालिक को खुद के बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने से कोई रोक सकता है क्या? हाँ या ना? Should anyone stop him from looking into the books? No. So they have right to inspect the books of account. They have right to transfer the shares. Now share is a movable property which can be transferred from one person to another. Which can be transferred from one person to another. हाँ या ना? Which can be transferred from one person to another. Yes or no? Right? So, but if it is a private company, they don't hold the right to transfer the share. But if it is a public company, they can transfer their movable property, they share from one person to another. Yes or no? Right? Next point, no preferential right. Equity shareholders are residual claimant at the time of liquidation of the company. They do not hold any preferential right for the repayment of the capital. कंपनी ने सब कुछ अपने लाइबिलिटीज, पेमेंट्स, कैपिटल सब पे करने के बाद, प्रेफरेंशियल कैपिटल रिपे करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ बच जाता है तो बचे कुछ रेसिडुअल का क्लेम करने का अधिकार उनके पास है। उसके अलावा किसी भी चीज का क्लेम वो कंपनी के अगेंस्ट नहीं कर सकते। सो दे डोंट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट in the form of dividend or at the time of repayment of the capital at the time of liquidation. वो नहीं बोल सकते borrowed capital को देने से पहले हमारा repayment करो, बोल सकते हैं क्या? नहीं, because they are residual claimant and they do not have any preferential right. Next, controlling power. Who is the owner of the company? The equity shareholder. Who are the true owners? Equity shareholders. All the decisions of the business are taken at the annual general meeting. And who has the right to vote at the annual general meeting? Who has the right to vote at the annual general meeting? Who has the right to vote at the annual general meeting? Equity shareholders. Yes or no? Right. So who has the controlling power? Ultimate decision किसका चलेगा? Members का, equity shareholders का, which is taken at the annual general meeting. So who holds the ultimate controlling power? Who is the ultimate controlling power? Equity shareholders. Next point, risk. अगला point क्या है? Risk. What is the next point? Risk. Who is bearing the ultimate risk with the company? Equity shareholder, because they are residual claimants. कल को कंपनी अच्छा कर ली, प्रॉफिट में चली गई तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। लेकिन समझो इसका उल्टा हुआ, अगर इसका उल्टा होता है, कंपनी डूब गई, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होना है क्या? रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होना है क्या? नहीं। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा? नहीं। कंपनी क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। कंपनी क्या हो जाएगी बेटा? डूब जाएगी। तो अल्टीमेट रिस्क कौन ले रहा है? सही रिस्क कंपनी की कौन ले रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस और नो? राइट। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिडुअल क्लेमेंट। At the time of liquidation of the company, whenever the company goes into liquidation, all the liabilities or borrowed capital is paid first. Borrowed capital को पेमेंट करने के बाद जो शेयर कैपिटल है उसका रिपेमेंट होगा। उसके अंदर भी पहले पैसा किसका लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस कैपिटल रिपे करने के बाद बेटा कुछ बच गया कंपनी के पास तो फिर किसका रिपेमेंट होगा? इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, है या ना? राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन है बेटा? रेसिडुअल क्लेमेंट। कौन है बेटा? रेसिडुअल क्लेमेंट। जो बचा कुचा सब कुछ लास्ट में जो बचेगा उसके ऊपर क्लेम करने का। रेसिड्यू यानी जो बचा कुचा है। रेसिड्यू का मतलब क्या है? जो बचा कुचा है। सो रेसिडुअल क्लेमेंट बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। कि कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है, सब कुछ पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ बच गया तो उसके ऊपर अधिकार किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। आर इक्विटी शेयर्स सेक्योर्ड इक्विटी शेयर्स? Are equity shares the secured equity shares? No. So do they hold a charge over the assets of the company? No. They do not hold any charge. They do not hold any charge over the assets of the company. Next, bonus issue. Now there is one more concept of bonus issue where the bonus can be given to the equity shareholders in the form of additional shares for which they don't have to pay anything, which are called as bonus shares. इसके बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, राइट इशू। व्हाट इज राइट इशू? व्हेनेवर इन अ एग्जिस्टिंग कंपनी, व्हेनेवर इन अ एग्जिस्टिंग कंपनी, व्हेनेवर इन अ एग्जिस्टिंग कंपनी, व्हेनेवर न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड, जब कभी भी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में नए शेयर्स इशू किए जाने वाले हैं, ये नए शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए पहले अधिकार करंट शेयर होल्डर को दिया जाता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है पहले उसको दिया जा रहा है।
ये जो अधिकार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिल रहा है कि नए शेयर होल्डर से पहले आप कंपनी के न्यू शेयर्स खरीद लो, इस अधिकार को हम कहते हैं राइट इशू। यस और नो? राइट। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? The value which is mentioned on the share certificate is called as the face value of the shares. Face value issue price can be different. If the company is having goodwill, it can sell the shares at premium, that is issue price will be greater than the face value. Next, market value. What is market value? The value of any share at a given particular point in the market or the stock exchange where it is trading, it is called as market value. What is the next point we have? Capital appreciation. जैसे मैंने कहा कंपनी में रिलायंस कंपनी है, उसने जो शेयर्स इशू किए, शेयर सर्टिफिकेट, उसकी फेस वैल्यू कितने बेटा? 100 रुपए। वो शेयर उन्होंने कितने में बेचे? 500 रुपए में। दे आर चार्जिंग प्रीमियम ऑफ 400 बिकॉज ऑफ द गुडविल दे हैव इन द मार्केट। यस और नो? और वो गुडविल के हिसाब से उन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश की, शेयर्स इशू किए, 500 रुपए लोगों से कलेक्ट किए और अपने गुडविल के हिसाब से काम करके बताया, कंपनी को प्रॉफिट में ले जाकर बताया, जियो को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे लेके गए। अचानक फिर ये जियो के शेयर्स 500 रुपए से 1000 रुपए के हो गए और ये 1000 रुपए के जब शेयर हुए तो इशू प्राइस के हमने खरीदे कितने में? 500 रुपए में। तो 500 रुपए का मुनाफा हुआ। दिस 500 रुपीज ऑफ प्रॉफिट is nothing but the capital appreciation, or this is nothing but the increase in the value of the shares which we are seeing. Yes or no? Now capital appreciation is equal to market value minus issue price, not face value, not face value. शेयर्स मैंने कितने में खरीदे? 500 रुपए में। शेयर्स कितने में खरीदे बेटा? 500 रुपए में। 100 रुपए में खरीदे क्या? फेस वैल्यू 100 है, लेकिन खरीदे कितने में? 500 में। बेच कितने में रहा हूं? 1000 में। तो ऐसा गलती मत करना। कैपिटल एप्रिसिएशन इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। ऐसा गलती मत करना। कैपिटल एप्रिसिएशन इज इक्वल टू फेस वैल्यू की इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। इश्यू प्राइस कितना बेटा? 500। सॉरी, मार्केट प्राइस माइनस इश्यू प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है मेरा? 1000 माइनस इसमें से फेस वैल्यू करूं कि इश्यू प्राइस करूं? इश्यू प्राइस, जितने में आपने खरीदा है। तो ये 500 रुपए क्या हुआ बेटा मेरा? कैपिटल एप्रिसिएशन और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स व्हिच आई हैव बॉट। यस और नो? आया ना? राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. Now the equity shares which are to be issued by the company are of two types. First is equity shares with voting rights and equity shares with differential voting right. Equity shares with voting right and equity shares with differential voting right. Let's come to the first point, equity shares with voting right, where the shareholders hold the voting of a company as per the amount of the share they hold in the company. It is called as equity share with voting rights. It is called as equity shares with voting rights. 2 minutes. Whenever any person or whenever the members hold the voting rights as per the shareholding they have in the company, it is called as shares which are issued with normal voting rights. Shares with differential voting right का ये जो फंडा है, ये पहली बार टाटा कंपनी ने लाया, जहाँ पे उन्होंने हर क्लास ऑफ कंपनी के हिसाब से अलग अलग वोटिंग राइट हर एक शेयर होल्डर को दिए हैं। सो जब शेयर होल्डिंग के मुताबिक किसी व्यक्ति की वोटिंग कंपनी में नहीं होती, देन दो शेयर्स आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। शेयर होल्डिंग के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की कंपनी में वोटिंग होती है, देन इट इज इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट. सो दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. यस और नो? यस और नो? चलिए, सो अब आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स. Now we have completely understood what is equity shares, what are the features of equity shares. Now let's try to understand the second source of share capital, which is preference shares. Right? These shares are called as preference shares because they enjoy preferential right over the equity shares. These preferential shares carry two preferential rights. The first preferential right being preference dividend. That is, these shares carry fixed dividend. These shares carry fixed dividend as compared to equity shares where the income or dividend is not fixed, it is fluctuating. Yes or no? Right? And second, these shares or these share capital carry preferential right at the time of repayment of the company in case of liquidation. Whenever the company goes into liquidation, whatever borrowed capital which is being repaid, after that any amount which is being remaining with the company, out of that remaining amount, first the preference capital has to be repaid. After payment of preference capital,
whatever is the leftover then is paid to the equity shareholders. So in case of repayment of capital, the preference shareholders carry a preferential right over the equity shareholder. No doubt it is also considered as one of the owned capital in the company. It is also considered as one of the owned capital in the company. That is the reason why whenever the company is making profit, payment of fixed preference dividend is compulsory. But if the company is not making profits, preference dividend which is fixed to be paid is not required to be paid. Preference dividend, जो फिक्स डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, वो पे करने का काम कंपनी का तभी बनता है जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है. अगर कंपनी किसी साल में नुकसान में जाती है तो फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने का कोई भी काम कंपनी का नहीं बनता. इन केस ऑफ लॉस द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड. यस और नो, ये बात आपको याद होगी. लेकिन जब हम बोरोड फंड्स की बात करते हैं, चाहे कंपनी मुनाफे में हो चाहे कंपनी नुकसान में हो, whether the company is in profit or whether the company is losses, interest on the borrowed capital has to be compulsorily paid, right? So on the basis of this particular single point, this capital is also considered as owned capital. This capital is also considered as owned capital, right? Now preference shares, as I have told you, how are these different from the equity shares? Because they enjoy preferential right. Because they enjoy preferential right. This preferential right is in the form of payment of dividend and for the repayment of the capital at the time of liquidation of the company, right? Now let's look into one feature of the preference shares. First point, preference dividend. Out of the profit, first sharing is of preference dividend. Every preference shares carry fixed dividend. This fixed dividend have the first sharing in the profits of the company before the dividend which is to be paid to the equity shareholders. कंपनी अगर मुनाफे में है तो उस मुनाफे में से पहला जो है प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाएगा. प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद अगर कुछ बच गया तो फिर उस प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है. So they have a preference for the dividend over the dividend which is to be paid to the equity shareholders. Preference for repayment of the capital. कंपनी कल को लिक्विडेशन में जाती है तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले प्रेफरेंस कैपिटल होता है, उसके बाद अगर पैसा बच जाता है कंपनी के पास लिक्विडेशन में तो फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का रीपेमेंट किया जाता है. हाँ या ना, राइट? नेक्स्ट, फिक्स्ड रिटर्न. अनलाइक द इक्विटी शेयर्स where the dividend is fluctuating, the dividend is not fixed, the preference shares carry fixed dividend. उन्हें एक फिक्स्ड इनकम मिलती है. So comparatively between equity shares and preference share is a less risky security. It is a less risky security. Why? Because they have fixed return. Fixed dividend is paid to the preference shares, hence it has fixed return. Next, nature of capital. What is the nature of capital? What is the nature of capital of preference shares? The preference share are part of owned capital or part of the share capital which is being issued to the company. This is forms the owned capital of the company, not the borrowed capital. But still, as per the Companies Act, preference shares which are issued in India are compulsorily redeemable preference shares, यानी जिसे रीपे करना कंपल्सरी है. नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू. अगला पॉइंट क्या बेटा? मार्केट वैल्यू. नॉर्मली वी डोंट सी अ मच फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हमें प्रेफरेंस शेयर के मार्केट वैल्यू में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती बिकॉज दे आर नॉट द अल्टीमेट रिस्क बियरर्स. नॉर्मली स्टैग्नेंट और उसी के आसपास ही जो है प्रेफरेंस शेयर, इशू प्राइस, फिर उसके बाद फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू नॉर्मली सेम ही देखी जाएगी इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि दिस इज अ लेस रिस्की सिक्योरिटी. नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स. अगला पॉइंट क्या बेटा? वोटिंग राइट्स. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव जनरल वोटिंग राइट्स लाइक द इक्विटी शेयर होल्डर्स. दे हैव वोटिंग राइट्स, दे हैव अ राइट टू वोट only on the matters which concern them as the preference shareholder. उनके कैपिटल से जुड़े, उनके डिविडेंड से जुड़े अगर कोई मुद्दा है तो उसी के ऊपर वोट करने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया गया है. जनरल वोटिंग राइट जैसे एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है
वैसे वोटिंग राइट कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते। अभी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क। कंपेरेटिवली इट इज अ लेस रिस्की शेयर, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर, बिकॉज अल्टीमेट रिस्क कौन बेयर कर रहा है बेटा? इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उसमें एक तो परमानेंट कैपिटल है। कैन दिस बी कॉल्ड एज अ परमानेंट कैपिटल? नो, क्योंकि preference shares are compulsorily redeemable. That means they have to be repaid after a particular period. They have to be repaid after a particular period. तो यहाँ पे रिस्क है क्या बेटा? नहीं है, यहाँ पे रिस्क नहीं है, यहाँ पे इश्क नहीं है, आया ना? राइट। नेक्स्ट, क्योंकि इन्हें प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो फिक्स मिलता है और इन्हें प्रेफरेंस मिलता है फॉर द रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इसीलिए कंपेरेटिवली यहाँ पे रिस्क थोड़ी कम है। नेक्स्ट, face value. Face value is the value at which the preference shares the value which is mentioned in the preference share certificate. इक्विटी शेयर का जो सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर जो इश्यू किए जाते हैं उसके अगेंस्ट भी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर आर इश्यूड टू सो पर्सन and this particular preference share also carries this % of fixed dividend. These all things are mentioned on this particular share certificate, which is a preferential certificate. Along with this, also the repayment term is also mentioned that this preference share are for a period of 5 years, 7 years, 10 years, whatever. All is mentioned on the share certificate, right? So the value which is mentioned on the share certificate is nothing but the face value. Normally, being a low risky security, face value, issue price and market value of a preference share in a market normally remains stagnant or same. We don't see so much of fluctuation in the market value or face value or issue price in case of preferences as we see in the equity shareholders. Yes or no? Next point, right or bonus issue. Same like the equity shares, the preference shareholder also have a right to take bonus shares or right to claim bonus shares. कंपनी अगर बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, साथ साथ वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए भी होंगे, है या ना? राइट। राइट इशू, राइट इशू इज द राइट विच इज गिवन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूली इश्यूड शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. Preference shares are undoubtedly existing shareholders of the company. So the new shares which have been issued, the right to subscription is given to the preference shareholders also. Yes or no? Aya na? Right? So the preference shareholders enjoy the right or bonus issue. Right? Right or bonus issue का option है नहीं है? नहीं मिलता. Sorry, थोड़ा सा mistaken here. The right to have the right issue or bonus issue does not lie with the preference shareholder. Does not lie with the preference shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर को जैसा राइट इशू यानी एग्जिस्टिंग शेयर्स में वापस न्यू इशू किए शेयर्स को परचेस करने का अधिकार है, तो वो राइट इशू करने का अधिकार या राइट इशू का अधिकार ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. ठीक उसी तरह से बोनस शेयर क्लेम करने का अधिकार भी इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है तो उनको अलग से बोनस देने की करने की कोई बात नहीं है और उन्हें राइट देने का भी अधिकार नहीं. इसीलिए बोला कि पूरा टेक्स्ट मेरे सामने नहीं है, बोलते बोलते चूक होने लाजमी है, तो अगर कहीं कुछ लगा तो मुझे बोल देना. थैंक यू फॉर करेक्टिंग. चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर. नाउ नेचर ऑफ इन्वेस्टर, अब ये लेस रिस्क की एसेट है. हर्षित मेहता जैसा इन्वेस्टर जो रिस्क पसंद करता है, जिसे लगता है रिस्क है तो इश्क है, क्या ऐसा इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इंटरेस्ट रखेगा? नहीं. उसे क्या पसंद आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल. तो जो कंजर्वेटिव है इन्वेस्टर, जो लेस रिस्क लेना पसंद करता है, जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, ऐसा इन्वेस्टर ही क्या करेगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखेगा, है या ना? अभी क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? यस और नो? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. First of all, we should clearly know that in India we only have redeemable preference shares. Redeemable यानी which have to be repaid after a particular period. Whenever something is to be redeemable यानी to be repaid, redeemable यानी to be repaid. So preference shares जो issue किए जाते हैं इंडिया में, as per the Companies Act, compulsorily have to be redeemable preference shares. That means preference shares have to be repaid after a particular period. Haya na? Right? Now types of preference share, starting with the first point, cumulative preference shares and
नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों की जोड़ी है, उस हिसाब से मैं समझाऊंगा। Now what is difference between cumulative preference shares and non-cumulative preference shares? If the fixed dividend which is to be paid on the preference capital is not paid in a particular year, so that arrears of preference dividend is carried forward to the next year. Such kind of preference share where the arrears of preference dividend which is not paid in a current year is carried to the next year, such kind of preference shares are called as cumulative preference shares. अगर कोई साल में कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाती, now there are arrears of preference dividend, but these arrears of preference dividend cannot be carried to the next year. Either they have to be paid in the same year itself. If they are not paid in the same year itself due to losses, same cannot be claimed next year. The same cannot be carried forward to the next year. Unpaid or arrears of preference dividend which cannot be carried to the next year, such kind of preference shares are called as non-cumulative preference shares. क्यूमुलेट करना है यानी ऐड करते जाना। तो 2-3 साल अगर कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे कर पाई तो तीनों साल का अनपेड डिविडेंड को हम ऐड करते गए, चौथे साल में प्रॉफिट के अंदर जो अनपेड था उसको भी पे किया, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुए बेटा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पहले 3 साल में नुकसान हुआ, 3 साल में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाए, चौथे साल में प्रॉफिट हुआ, लेकिन चौथे साल में सिर्फ चौथे साल का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, पहले 3 साल का नहीं दिया, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुए बेटा? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, participating preference shares and non-participating preference shares. We all know that the preference shares carry fixed dividend. Preference shares carry fixed dividend, हाँ या ना? प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या है? फिक्स डिविडेंड है। प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या है? फिक्स डिविडेंड है। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स have the right to participate in the fixed profit for the have the right to participate in the profits for the fixed dividend they are receiving. For the fixed dividend they are receiving. Let's say the company is doing substantially well. Now every preference shareholder has a right to fixed dividend. Has a right to fixed dividend. But after paying fixed dividend, the company still has surplus profit. Whenever preference shares which are issued, who are allowed to share the profit in excess of the fixed dividend which is paid to them, in excess of the preference dividend paid to same, whenever the preference shareholder have a right to participate in the profits of the company above the fixed dividend which is paid to them, are called as participating preference shares. Yes or no? यानी participating preference shares वो है जिन्हें फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा, उसके अलावा सरप्लस प्रॉफिट जो कंपनी बना रहा है उसके अंदर भी डिविडेंड क्लेम करने का अधिकार ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स रखते हैं। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली दिया गया है प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली दिया गया है दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, सो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड क्लेम करने का अधिकार है, उसके अलावा 1 रुपया एक्स्ट्रा भी वो कंपनी के पास क्लेम नहीं कर सकते। सो प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग राइट ऑफ ओनली फिक्स्ड डिविडेंड आर कॉल्ड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में फिक्स्ड डिविडेंड से भी और कुछ ज्यादा क्लेम करने का अधिकार जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर रखता है, दे आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। Whenever the preference shares are allowed to be converted into equity shares, such kind of conversion when allowed to the shares, the preference shares are called as convertible preference shares. The preference shares which are not allowed to be converted into equity shares of the company are called as non-convertible preference shares. Normally, conversion or non-conversion right is given at the end of the tenure of the preference shares. Let's say whenever a company issues preference shares for 5 years, normally प्रथा ये है कि प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए जाते हैं वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। सो इससे पहले टेन्योर खत्म हो, हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास अधिकार होता है कि अपने टेन्योर खत्म होने से पहले अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लें। तो इससे क्या होगा, कंपनी का कैपिटल कंपनी के पास रहेगा और प्रेफरेंस शेयर से जब वो इक्विटी शेयर हो जाएगा तो वो परमानेंट कैपिटल कंपनी का बन जाएगा, जिसको रिपे करने की बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन जब नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो है जो टाइम पीरियड के बाद रिपे हो जाने चाहिए, रिडीमेबल है, 5 साल की लाइफ है, 5 साल के बाद उसे रिपे करो, उसको आप किसी भी और सिक्योरिटी के अंदर
किसी इक्विटी शेयर के अंदर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, दे आर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, दे आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल इररिडीमेबल का, repayable and non-repayable. When shares have to be repaid, when shares have to be repaid after a particular point are called as redeemable preference shares. When shares have not to be repaid after a particular point are called as irredeemable preference shares. As per the Companies Act in India, we cannot issue irredeemable preference shares. Are we clear? Are we clear? Yes or no? हाँ या ना? चलो, let's move on to the next heading, that is retained earnings. Now, the sources of finance are either own fund or either are borrowed funds. Now, own funds have two sources, share capital or retained earnings. We have understood what is share capital. Share capital has two sources of finance, equity shares or preference shares. Now, coming on to the last source of finance in case of owned capital. The only remaining part which is to be talked about in own capital is retained earnings. What are retained earnings? Retained earnings is a concept of flowing back of profit. क्या बोलते हैं हम इसको? Flowing back of profit. खोरा रहता है, खोरा, राइट? खोरा मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसा मुंह रहता है उसको, चोट जैसा मुंह रहता है, क्या बोलते हैं उसको? फावड़ा, वो व्हाटएवर, फावड़ा, खोरा, कुछ भी बोलो, राइट? कभी कंस्ट्रक्शन का काम देखते हो, कंस्ट्रक्शन के काम में वहां पे रेती का ढेर होता है, राइट? वो एक औजार, एक टोप कटोरी में वो रेती भरता रहता है, वो भरने के लिए औजार का इस्तेमाल करता है, राइट? तो समझ लो वो रेती जो पड़ी है वो प्रॉफिट है, वो जो रेती पड़ी है वो प्रॉफिट है, वो जो लेबर है वो डायरेक्टर है, वो लेबर जो है वो डायरेक्टर है, वो जो खोरा वो फावड़ा लेके वो क्या कर रहा है, उस कटोरी के अंदर वो रेती भर रहा है और रेती को उठा के लेके जा रहा है. Now what is doing out of the entire reti, that is profit, he is taking out some part and is flowing back. He is flowing back the profit which is called as retained earnings. Which is called as retained earnings. Retained earnings is nothing but flowing back of profits. We all know कंपनी तभी अच्छे से चलेगी जब कंपनी का फाइनेंस ठीक तरह से चलता है, और बिना फाइनेंस के तो कंपनी चलती नहीं. दिन ब दिन कंपनी की फाइनेंशियल नीड जो है वो बढ़ती रहेगी, हाँ या ना, राइट? हर बारी हाथ फैलाए ये कहां तक सही है? हर बारी हाथ फैलाए ये कहां तक सही है? खुद का खुद इंडिपेंडेंट बनना भी जरूरी है ना? खुद का खुद इंडिपेंडेंट बनना भी जरूरी है. तो ऐसे सिनारे में कंपनी में क्या सोचते हैं कि भाई हर बारी हाथ क्यों फैलाए, जब अपनी कंपनी इतना अच्छा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, हम हमारे प्रॉफिट में से ही कुछ पैसा बाजू में रखते हैं और बाद में जब जरूरत पड़ेगी पैसे की तो हम इसी पैसे का इस्तेमाल करते हैं. हर बार किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो इस आइडियोलॉजी से जब कभी भी कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट बनाती है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स ये निर्णय लेते हैं, लेट्स फ्लो बैक सम प्रॉफिट. इस पूरे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बाजू में निकाल के रखते हैं ताकि आगे चल के हमारे कोई फाइनेंशियल नीड्स हो तो हम इस पैसे से आराम से मीट अप कर सकते हैं. यस और नो? वी कैन मीट अप द फर्दर फाइनेंशियल नीड्स इजीली आउट ऑफ द प्रॉफिट विच इज बीइंग केप्ट असाइड. द प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड is nothing but is called as your retained earnings. Now this source of owned capital is applicable only for an existing company. एक न्यू कंपनी के लिए ओन्ड कैपिटल में सिर्फ शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. रिटेन्ड अर्निंग्स वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. दे ओनली हैव ऑप्शन ऑफ ओन्ड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. लेकिन एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अपने एक्टिविटीज ऑपरेशन कर रही है, एक्टिविटीज और ऑपरेशन करने वाली जो कोई भी कंपनी है, एक्टिविटी और ऑपरेशन करने वाली जो भी कंपनी है वो रिटेन्ड अर्निंग्स कर सकती है क्योंकि उनके पास प्रॉफिट रहेगा. अगर उनके पास सरप्लस प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है. नई कंपनी है, उसकी कोई ऑपरेशन नहीं है तो उसका प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट में से हिस्सा निकालने का कोई सवाल ही नहीं. जब प्रॉफिट नहीं है तो हिस्सा क्या निकालेंगे? लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अच्छा कर रही है, जो प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट का हिस्सा कुछ अगर बाजू में निकाला जाया है फॉर फर्दर financial needs of the company, the profit which is kept aside, the profit which is flowed back is nothing but your retained earnings. Now there are various determinants of retained earnings.
कंपनी नॉर्मली रिटेन अर्निंग्स कब करती है? कंपनी प्रॉफिट का अपना कुछ हिस्सा बाजू में रिटेन अर्निंग के तौर पे कब निकालती है? वो डिटरमाइन करने के लिए कुछ डिटर्मिनेंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट है टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। कोई ऐसी कंपनी है जिसकी टोटल अर्निंग लो है, क्या वो रिटेन अर्निंग्स रखने की कोशिश करेगी? नहीं, उन्हें सिर्फ निकालना है, वक्त निकालना है। लेकिन कोई कंपनी जिसकी टोटल अर्निंग बहुत ज्यादा है, फेसबुक हो गया, इनकी टोटल अर्निंग बहुत ज्यादा है, अमेजॉन हो गया, इनकी टोटल अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो ये लोग बड़े आसानी से अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बाजू में निकाल के रख सकते हैं, ताकि कल को कोई कितने भी बड़ी प्रोजेक्ट करनी पड़े, कितना भी एक्सपेंशन करना पड़े, कंपनी में कुछ भी फाइनेंशियल नीड्स हो, तो उनको वापस से किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। जितनी ज्यादा टोटल अर्निंग होगी उतना ज्यादा रिटेन अर्निंग्स होगा, जितनी कम रिटेन अर्निंग होगी उतना कम रिटेन अर्निंग होगा। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसीज। टैक्सेशन पॉलिसीज फेवरेबल है, जहां टैक्स कम है तो प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम जो होता है वो क्या होता है बेटा? इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इनकम माइनस टैक्स। इनकम 10 लाख है आपकी कंपनी की, कितनी है बेटा? 10 लाख रुपए। अगर 30% टैक्स लग रहा है, अगर 30% टैक्स लग रहा है तो 3 लाख तो टैक्स गया, कंपनी के पास बचा कितना? 7 लाख, राइट? एज पर दिस टैक्सेशन पॉलिसी, लेट्स से वी कैनॉट हैव रिटेन अर्निंग्स, but the taxation policies have now improved and the tax has reduced to 10%. अब प्रॉफिट उतना है 10 लाख रुपए, इसमें से 10% माइनस हुआ, कितना हुआ बेटा? 1 लाख रुपए। 10% ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, तो अब प्रॉफिट कितना बचा? 9 लाख। पहले कितना बच रहा था? 7 लाख। अब पहले से प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि टैक्स में बदलाव है। बदलते टैक्स के साथ कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम को क्या बोलते हैं? इनकम माइनस टैक्स। तो डिस्पोजेबल इनकम कंपनी के हाथ में अब ज्यादा है क्योंकि टैक्स कम लग रहा है, तो जब टैक्स में बचत हो रही है तो कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो रिटेन अर्निंग्स ज्यादा होगी। यही उल्टा हुआ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेट से सरकार ने 50% टैक्स कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, 30 का 50 कर दिया, तो कंपनी के पास प्रॉफिट जो हाथ में रहेगा वो कम रहेगा ना, तो फिर उसमें से वो रिटेन अर्निंग करने की कोशिश करेंगे नहीं। So it also depends on the taxation policies. It also depends on the dividend policy. Let's say the company has the policy of 100% payment of dividend. जितना भी प्रॉफिट आए सब प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट सब टैक्स भी सब देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, राइट, जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड एंड टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड टैक्स, सब कुछ देने दुआने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट कंपलसरीली 100% डिविडेंड के तौर पे इक्विटी शेयर्स को डिक्लेयर होना चाहिए। ऐसी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है, ऐसी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है। तो ऐसी कंपनी कभी रिटेन अर्निंग्स कर पाएगी क्या? नहीं। कोई कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी तय नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन सीन टू सीन एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ऐसे सिनारियो में सभी इंटरेस्ट का पेमेंट, टैक्स का पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास 10 लाख रुपए बच जाते हैं। तो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है? वो तय नहीं है, वो प्रॉफिट के हिसाब से देखी जाएगी। अब ये 10 लाख में से डिविडेंड कितना देना है, कितना बाजू में रखना है, ये लेने का निर्णय कंपनी के पास है, उसके हिसाब से रिटेन अर्निंग हो सकता है। लेकिन कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्लियर है कि कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पूरा की पूरा वो डिविडेंड के तौर पे 100% पे कर देंगे, तो क्या कंपनी कभी रिटेन अर्निंग्स कर पाएगी क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। कभी कभार गवर्नमेंट कुछ टाइप ऑफ कंपनी को कंपलसरी करते हैं कि अगर आप इतना प्रॉफिट करें तो उसमें से कुछ हिस्सा बाजू में निकालो। नॉर्मली ऐसा होता है जब कंपनी बहुत रिस्क से चल रही है, कंपनी के बोरिंग्स बहुत ज्यादा है, बड़े पैमाने पे हैं, जिनका डिपॉजिट ज्यादा है, जिनका बोरिंग ज्यादा है, कल को ये अपने रिपेमेंट में कोई चूक ना करे, इसलिए कंपनी, ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ऐसे कंपनियों के ऊपर वॉच रखने के लिए, ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बोलती है कि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो कुछ पैसा निकाल के रखो, ताकि इतनी बड़ी कंपनी चलकर कुछ कम ज्यादा हो गया तो इसमें से आप कुछ ना कुछ गुजारा उसमें कर सकोगे, राइट? सो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड्स ऑन द क्वांटम ऑफ द रिटेन अर्निंग्स। इज इट ओके? इज इट ओके? यस और नो? राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, sources of borrowed capital. Now the corporate finance is under two heads of owned capital and borrowed capital. We have seen that owned capital can be in the form of share capital or retained earnings. The share capital can be equity shares or preference shares. Retained earnings are nothing but the flowing back of profit which is kept aside.
for meeting the further financial needs of the company. Yes or no, Sanskar? Right? Now let's move on to the next part, that is debt capital और borrowed capital. मेरे इडली की दुकान का जो बिजनेस मैंने शुरू किया, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी, जिसमें मैंने मेरे सेविंग से 50,000 रुपए डाले, जिसमें मैंने मेरे सेविंग से 50,000 रुपए डाले और 50,000 रुपए मुझे विनय ने दिए हैं, और 50,000 रुपए मुझे मेरे विनय ने दिए हैं। तो विनय से जो मैंने पैसा लिया है वो क्या है बेटा? वो मेरा खुद का पैसा है क्या? नहीं। क्या विनय बिजनेस का ओनर है क्या? नहीं। विनय एक तीसरा व्यक्ति है जो मुझे पैसा दे रहा है ताकि मैं बिजनेस में लगा सकूं। सो दिस कैपिटल विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम विनय इज नथिंग बट माय बोरोड कैपिटल। उधार लिया हूं मैं, तो उधार क्या है? जो रिपे करना होता है। उधार जब आप किसी से लेते हो उसको रिपे नहीं करते चलता है क्या? नहीं, उसे वापस देना पड़ता है। So this is nothing but called as your borrowed capital, right? Only owned capital is not sufficient to carry on all the business activities of a joint stock company. A company needs borrowed capital to supplement its owned capital. अपने owned capital को और supplement करने के लिए और finance strong करने के लिए और पैसों से मजबूत रहेगा तो कंपनी अच्छे से चलेगा। अब मेरे क्लासेस में अगर मेरे पास फंड्स ही नहीं है तो मैं क्या एक्सपेंशन कर पाऊंगा? नहीं। अब एक्सपेंशन करने के बाद इतना एडिशनल खर्चा कर पाऊंगा? नहीं। ये सब चीजें होगी क्या? नहीं। विल दिस ऑल थिंग्स हैपन? नो। दिस आर ऑल हैपनिंग बिकॉज आई हैव प्रॉपर बैकिंग ऑफ ओन कैपिटल एज वेल एज बोरोड कैपिटल। सिर्फ ओन कैपिटल से काम नहीं चलता साहब, साथ साथ में बोरोड कैपिटल भी रखने होते हैं। ना बोरोड कैपिटल में जो पहला टाइप हमें डिस्कस करना है जो इंपॉर्टेंट है वो है डिबेंचर्स। नाउ पाल्मर हैज डिफाइंड डिबेंचर्स। The word debenture is derived from the word deber. ये जो डिबेंचर नाम है ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? डिबेर। डिबेर का मतलब होता है टू ओ। डिबेर का मतलब होता है टू ओ। सो डिबेंचर इज नथिंग बट द ओइंग ऑफ अ कंपनी टू सम अदर पर्सन और इज अ प्रूफ, और डिबेंचर सिक्योरिटी इज अ प्रूफ that the company owes certain amount to the person who is holding the debenture, right? So debentures are the securities which are issued. The person who subscribe to the debentures are called as debenture holders, and debentures which are issued to the debenture holders is one of the form of borrowed capital which carries a fixed income in the form of interest, which carries a fixed income in the form of interest and which is to be repaid after a particular tenure, which have to be repaid after a particular tenure. Yes or no? Right? Now let's look into the definition of debenture. Palmer defines a debenture as an instrument under the seal evidencing the debt, the essence of it being admission of the indebtedness. Now the debenture certificate with the common seal is a proof that the company is indebted. The company is owing that certain sum of money to the person whose name is mentioned in the debenture certificate. Toffen defines debenture is a document given by the company as a evidence of the debt to the holder, usually arising out of the loan and most commonly secured by charge. And normally we see whatever debentures are issued by the company are mostly secured debentures. So whenever we say something is secured, that particular secured security carries the charge over the assets of the company. So debentures normally are being issued are secured debentures, and secured debentures always carry a charge over the assets of the company. यानी किसी भी हाल में अगर कल को लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन के बाद जब असेट को बेचा जाएगा, बेचे जा रहे असेट्स पे चार्ज किसका रहेगा? डिबेंचर होल्डर का। तो जिन जिन असेट्स पे उनका चार्ज रहेगा वो असेट बेच के पहले उनके पैसे लौटाने पड़ेंगे, हाँ या ना? राइट? ये होता है चार्ज ओवर द assets of the company. According to the above definition, debenture is a evidence of indebtedness. Debenture is a evidence of indebtedness to the company. Yes or no? Right? Now let's look into the various features of debentures. सबसे पहला है promise. Debentures is a promise for the payment of the money which is being borrowed by the company to the person who is giving the borrowing or who is lending money to the company, who is the debenture holder. So debenture is nothing but a security which is a promise where the company promised to pay the amount which is borrowed from the debenture holder as per the terms which are mentioned in the debenture certificate.
face value. The value mentioned on the debenture certificate is the face value of the debentures, right? Next, time of repayment. Every debentures which is being issued is redeemable debenture. That means they have to be repaid after a particular time period. They have to be repaid after a particular time period. So there is a time of repayment which is being defined. There is time of repayment which is being defined. Every debentures have to be repaid after a particular time or a maturity period. Next, priority of repayment. Before repayment of owned capital, borrowed capital has to be repaid. कल को कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दो है, एक है ओन्ड कैपिटल, दूसरा है बोरोड कैपिटल. इससे पहले कि ओन्ड कैपिटल का रिपेमेंट हो, उससे पहले किसका रिपेमेंट करना पड़ता है हमें? बोरोड कैपिटल का. अश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट, गारंटी होती है कि इनके पैसे डूबने वाले नहीं है, बिकॉज नॉर्मली डिबेंचर्स इश्यूड आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स. सिक्योर्ड डिबेंचर्स होने के नाते जितने वैल्यू के डिबेंचर्स कंपनी इश्यू कर रही है उतने वैल्यू के एसेट्स के ऊपर डिबेंचर होल्डर का चार्ज होता है, और वो एसेट्स बेच के पहले उनके ही पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे. नेक्स्ट, इंटरेस्ट. डिबेंचर्स कैरी अ फिक्स्ड इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. प्रेफरेंस डिविडेंड एंड फिक्स्ड डिविडेंड विच इज पेड टू द प्रेफरेंशियल होल्डर. इसी तरह से कुछ फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड ब्याज जो है डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है. सो द इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द डिबेंचर होल्डर इज नथिंग बट द इंटरेस्ट. नेक्स्ट, पार्टीज टू द डिबेंचर्स. Now the parties to the debentures, one is the company who is issuing the debentures, second is the trustee. Trustee is the mediator between the company and the debenture holder. He is appointed by the company but is appointed for looking into the interest of the debenture holders. कि जिस तरह से जो कुछ भी कंपनी ने तय किया है उसी हिसाब से कंपनी डिबेंचर होल्डर के साथ अपना जो वादा है वो पूरा करे. फिक्स चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये भी आपको पता है कि जो फिक्स चार्ज कंपनी के एसेट्स के ऊपर होता है, दैट इज इन द नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी. सो डिबेंचर ट्रस्टी होल्ड्स अ फिक्स चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एज ट्रस्ट फॉर द डिबेंचर होल्डर. एंड डिबेंचर ट्रस्टी इज नो डाउट अपॉइंटेड बाय द कंपनी बट ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एंड नॉट दैट ऑफ द कंपनी. Next, debenture holders. Now debenture holders are ultimate persons who are going to lend money to the company by buying the debentures of the company, right? Now these are the parties to the debentures. Next, authority to issue the debentures. Who has the authority to issue the debentures of the company? The board of directors have the authority to decide whether to issue debentures or not to issue the debentures of the company. Next, status of the debenture holder is the creditor of the company. Is the creditor of the company. उसको पैसे देना है. Borrowing, मैंने विनय से लिया है तो विनय से ये मेरे पैसे borrowed है, तो विनय क्रेडिटर है जिसे पैसे देना है, राइट? कंपल्सरी, क्रेडिटर के पैसे कंपल्सरी आपको देने होते हैं, इसीलिए स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर इज दैट ऑफ अ क्रेडिटर. नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट. तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल रहे हैं, तुम्हें उसके ऊपर अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है, तुम हमारे एसेट के ऊपर चार्ज रख रहे हो, इसके अलावा और क्या चाहिए भैया? पूरी सिक्योरिटी तो है कि तुम्हारा पैसा हमारे पास सुरक्षित है, सेफ है. उसके बाद जनरल कॉमन डिसीजन में उनको वोटिंग करने देने का कोई अधिकार देना चाहिए क्या? नहीं, कंपनी के साथ रिस्क तो कुछ ले नहीं रहे वो, इसलिए दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट. सिक्योरिटी, अ चार्ज इज क्रिएट ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी for the value of debentures which are issued to the debenture holder, and this charge over the assets of the company is created in the name of debenture trustee. Issuers, ये पॉइंट में क्या है? What is given in this particular point? Okay, the debentures can be issued by private company as well as public company. सिर्फ इतना है, प्राइवेट कंपनी इशू करेगी तो प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा ही उसको परचेज किया जा सकता है. जनरल पब्लिक को डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनी बेच नहीं सकती. पब्लिक कंपनी अपने डिबेंचर्स जनरल पब्लिक को बेच सकती है. नेक्स्ट, लिस्टिंग. डिबेंचर्स कैन बी लिस्टेड एंड कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी. डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one person to another, being a movable property. Is it okay?
Is it okay? So these are the various features of debentures. After understanding the different features of debentures, now let's look into the types of debentures. Now let's look into the types of debentures. First, secured debentures. The debentures creating a charge over the assets of the company are called as secured debentures. Are called as secured debentures. Are called as secured debentures. And the debentures which do not create a charge over the assets of a company are called as unsecured debentures. Right? Secured debentures के अंदर जब कभी भी रिपेमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो जो एसेट जिसके ऊपर उनका चार्ज है उसे बेचकर उनका पैसे का रिपेमेंट हो सकता है. लेकिन अगर अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स है तो कोई चार्ज ही नहीं है तो उनको रिपेमेंट का थोड़ा रिस्क रहता है एज कंपेयर टू सेक्योर्ड डिबेंचर्स. नॉर्मली अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स हमारे यहाँ कोई बाय नहीं करता. नेक्स्ट, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, राइट. Now registered debentures are one where the name of the debenture holder are mentioned in the register of debenture holders, right. जैसे मेंबर का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है वैसे डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स है, राइट. नेक्स्ट, bearer debentures. Now there is difference between bearer debenture, right. bearer debenture क्या है? debenture certificate which is issued without mentioning the name, of the debenture holder. So whosoever bears that particular document is the owner of those debentures, right. Next, redeemable debenture. bearer के बाद दूसरा टाइप क्या है? redeemable debentures which have to be repaid after a particular period. Irredeemable debentures and which do not have to be repaid, which are permanently to be kept, which are not allowed in India. Next, convertible debentures. Debentures which can be converted into equity shares before the expiry or which have a right to conversion of their debentures into equity shares are called as convertible debentures. Yes or no? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. डिबेंचर्स विच कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. डिबेंचर्स विच कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. Are we okay and fine? Are we okay and fine with all the types of debentures? हाँ या ना? Yes or no? Right? ब्रेक 10 मिनट में ब्रेक होना. चलो कोई ब्रेक भी कोई नहीं. चलो लेट्स कंटिन्यू विद डिस्कशन. बोरोड कैपिटल में हमने पहला सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल डिबेंचर पूरा डिटेल में डिस्कस किया है. डिबेंचर क्या है, डिबेंचर के फीचर्स क्या है, डिबेंचर के टाइप्स के, सारा डिस्कशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. अनलाइक द कमर्शियल बैंक व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, as per the directions of the central government and the RBI, the companies are also allowed to accept deposit from the public. प्राइवेट कंपनी नॉर्मली प्राइवेट प्लेसमेंट से ही सारा काम करती है. तो बट अब जनरल पब्लिक से प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का अधिकार नहीं है. हमने डिपॉजिट चैप्टर में देखा था कि प्राइवेट कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है वो अपने मेंबर से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. मेंबर्स या मेंबर्स के रिलेटिव से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. ओनली एलिजिबल कंपनी मीटिंग द कंडीशंस ऑफ द डिपॉजिट्स कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स. कंडीशंस क्या क्या है, कितना लिमिट तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये डिपॉजिट वाले चैप्टर में हमने डिटेल देखा था. वी ऑल नो दैट डिपॉजिट इज वन ऑफ द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल. It is one of the short-term source of borrowed capital. Yes or no, Kumkum? Right? It is short-term source of borrowed capital, where the deposits can be accepted for a period of 6 to 36 months. 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए कोई भी कंपनी जो है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है. Whatever deposits it is accepting from the investors or depositors, a deposit receipt is to be issued against same. The deposits which are accepted by the company from the depositor carry a fixed charge in the form of interest. The deposits which are accepted from the depositor have to be repaid after the expiry of the time period for which they have been accepted. Deposits by a company can be accepted for a period of minimum 6 months and maximum of 36 months. We are not talking about the exceptions.
नॉर्मल जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, टाइम पीरियड है डिपॉजिट एक्सेप्टेंस का, दैट इज 6 मंथ्स टू 36 मंथ। 6 महीने से 36 महीने के लिए डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। सो इससे ये समझ में आता है कि ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्या मैं डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके 10 साल का फाइनेंस जो है वो देख सकता हूं, या 10 साल का जो फाइनेंस है उसकी फंडिंग कर सकता हूं? नहीं। डिपॉजिट्स जो है मेरे शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स के लिए एक बोरोड कैपिटल का सोर्स है, जहां पे कंपनी डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। जो डिपॉजिट डिपॉजिटर से एक्सेप्ट किया है उसके बदले में जो डिपॉजिटर को एक रिसीट इश्यू की जाती है वो है डिपॉजिट रिसीट, और जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया है उसका रिवॉर्ड के तौर पे जो कंपनी पे करता है वो है इंटरेस्ट। सो द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड along with the interest has to be repaid as per the terms of the deposit at the maturity of the time period for which the deposit is accepted। अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है 10% पे फॉर 3 इयर्स, 3 साल के बाद जितनी मुद्दल एक्सेप्ट की है डिपॉजिट के तौर पे, साथ में 3 साल का 10% के हिसाब से ब्याज कंपनी को कंपलसरी जो है वो रिपे करना पड़ेगा। यस और नो? सो दिस इज द सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल विच इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहां पे हम 6 महीने से लेके 36 महीने तक जो है कैपिटल रेज कर सकते हैं। हाँ या ना? राइट? नाउ look into the meaning of deposits. As per section 231 of the Companies Act 2013, deposit includes any receipt of money by way of deposits or loan in any other form by the company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. As consulted by the Reserve Bank of India. Let's say कंपनी हमारी, हमने कंपनी बनाई जो परभनी जैसे एरिया में बन रही है। गवर्नमेंट ने बोला जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स है, द डिस्ट्रिक्ट्स विच आर लैगिंग बिहाइंड इन द डेवलपमेंट विल गेट सब्सिडी इफ दे सेट अप द इंडस्ट्री। लेट्स से रुद्राक्ष के पापा ने इथेनॉल का प्लांट बनाया जिसको 10 करोड़ रुपए की जरूरत थी। अभी इस 10 करोड़ में 25% सब्सिडी है, 2.5 करोड़ सरकार ने जो है रुद्राक्ष के इस प्लांट में दिए है। अब 2.5 करोड़ की जो सब्सिडी मिली है, कैन इट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स? कैन इट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स? Right? So money received is in any form, in the form of in form of deposits or loan, is part and parcel of the borrowed funds, which is called as deposit. But this deposit does not include any amount which is received from the central government of the state government, or any amount received as loan from bank, क्योंकि लोन रहा तो वो एक बैंक लोन जो है कमर्शियल बैंक से मिलता है, क्या हम उसे डिपॉजिट बोलते हैं? क्या नहीं। डिबेंचर होल्डर से जो हमें पैसा मिलता है, क्या वो डिपॉजिट है? क्या नहीं। वो क्या है? डिबेंचर कैपिटल। बैंक ने जो दिया है वो क्या है? मेरा टर्म लोन। बैंक ने जो लिया है वो मेरा टर्म लोन और बिजनेस लोन, क्या हम उसको डिपॉजिट बोल सकते हैं? क्या नहीं। तो ये सारी चीजें डिपॉजिट के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति कंपनी में अपने पैसे जमा करवाता है तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? डिपॉजिट्स, विच इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस विच मीट्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ बिटवीन 6 months to 36 months, and it carries a reward in the form of interest and have to be repaid at the time of maturity. Is it okay? हमने ये देखा है 36 महीने के मैच्योरिटी के बाद वही डिपॉजिटर कंपनी में रीडिपॉजिट कर सकता है, लेकिन 36 महीने के बाद एक बार का रीपेमेंट का निर्णय कंपनी को लेना पड़ेगा। एक बार रीपेमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद वापस से पैसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और फिर से नया डिपॉजिट रिसीट इशू करना होगा, नया पुराना करके लेना होगा। यानी कंपलसरी रीपेमेंट है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एज इज मेंशन्ड इन द डिपॉजिट रिसीट। यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? अब इसके अंदर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा अभी दिया नहीं है, बाद में चैप्टर ही है पूरा, तो वहां पे डिटेल में हमें बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड। नाउ बॉन्ड इज नॉट जेम्स बॉन्ड। बॉन्ड is a commercial paper or a document which is issued by a company to raise borrowed capital. Now this is a long term source of finance. The nature of finance of bond shows that it is a long term source of finance. It is long term source of finance. Bonds can be issued by the company for a period of 5 years, 10 years, 15 years. So जितने साल का बॉन्ड अब इशू कर रहे हो उतने साल तक पैसे आपके पास जमा रहेंगे। लेट्स से मैंने कंपनी ने विनय को कोई बॉन्ड इशू किया, तो विनय को 10 साल का बॉन्ड इशू किया है,
तो बॉन्ड की जितनी वैल्यू होगी उतनी रकम विनय मुझे आज देगा, वो रकम प्लस जो कुछ भी उसके ऊपर रिवॉर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट will be repaid after the period of 10 years as is mentioned as the time period in the bond. Yes or no? Yes or no? Right? तो वो जो बॉन्ड पेपर होता है उसके ऊपर दिया होता है कि इस बॉन्ड पेपर की वैल्यू इतनी है, इसके बदले में आज इतने पैसे देने हैं और टाइम पीरियड मैच्योर होने के बाद आपको इसके बदले में इतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो कंपनी इश्यू करके पैसा रेज कर रही है इसे हम कहते हैं बॉन्ड, विच इज वन ऑफ द sources of borrowed capital, which is one of the sources of borrowed capital, that to be long term source of finance, that to be long term source of finance, जहाँ पे बॉन्ड हम 5 साल से लेके 25 साल तक इश्यू कर सकते हैं, हाँ या ना, राइट। सो नेचर ऑफ फाइनेंस क्या बताता है हमें, इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ borrowed capital. Status of the bond holder, he is the क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसका पैसा अपने पास जमा है, उसको पैसा लौटाना है। रिटर्न्स ऑन द बॉन्ड्स, दे ऑल्सो कैरी द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक द डिपॉजिट होल्डर्स, लाइक द डिबेंचर, राइट। नेक्स्ट रीपेमेंट, द रीपेमेंट ऑफ द बॉन्ड विल बी एट द मैच्योरिटी एज इज मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड विच इज बीइंग इशूड। जैसे हमारी केस में 10 साल का बॉन्ड है तो विनय का पैसा 10 साल के बाद उसको लौटाना होगा, यानी दिस इज ऑल्सो अ रिडीमेबल कैपिटल। बोरोड कैपिटल कोई भी रहो कंपल्सरीली रिडीमेबल कैपिटल रहेगा। अभी तक हमने जितना भी देखा इसमें 2 ही सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है जिसका रिपेमेंट नहीं है, एक है इक्विटी कैपिटल, दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स जो पैसा खुद का है। बाकी इसके अलावा हर तरह का कैपिटल इज रिडीमेबल कैपिटल जिसे फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको रीपे करना होगा। अभी क्लियर, अभी क्लियर, यस और नो, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है एडीआर एंड जीडीआर। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, एडीआर एंड जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सी most of our companies are listed on one of the recognized stock exchange of India, but let's say रिलायंस जैसे कंपनी को ऐसा लगता है कि उनकी गुडविल इतनी है, इंडियन इन्वेस्टर तो छोड़ो, न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस के शेयर खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं, हाँ या ना, राइट। तो ऐसे सिनारियों में न्यूयॉर्क कहां पर आता बेटा, अमेरिका में आता, इतना जनरल नॉलेज तो सबका है, राइट। सो रिलायंस कंपनी को यह लगता है कि उनके शेयर्स अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए तो वहां से भी पैसा आ सकता है। कंपनी को पैसे से मतलब है, उन्हें पैसा रेस करना है। सो दे आर फाइंडिंग आउट डिफरेंट सोर्सेस। उनको लगता है कि अमेरिका में उनकी छवि इतनी अच्छी है कि अगर वहां के स्टॉक एक्सचेंज पे अगर वो उनके शेयर्स लिस्ट करते हैं तो वहां पे इन्वेस्टर अपने आप उनके कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। देखो, देश बदला कानून बदलते हैं। हमें हमारे देश के कानून में पूरी मीटअप करने नहीं होते तो दूसरे देश के कानून कहां मीटअप कर पाएंगे, लेकिन दूसरे देशों से पोटेंशियल दिखता है, फॉरेन इन्वेस्टर दिखता है जो हमारे कंपनी में रुचि रखता है। तो ऐसे किनारे में मुकेश भाई का यह सोचना है कि हमारे शेयर्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट होने चाहिए। अब रिलायंस कंपनी एक इंडियन कंपनी है, अब इंडियन कंपनी का एक फॉरेन कंट्री में जाके फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होना एक आसान बात है क्या? नहीं। देश अलग, जमीन अलग, कानून अलग, सब अलग। और वहां पे रहने वाला यूएस का इन्वेस्टर यही सोचेगा कि अगर हम समझ लो पूरे कानून पालन करने के बाद, सब करने के बाद अगर मान लो रिलायंस के शेयर खरीद भी लेते हैं और कल को कोई ऊंच नीच हो गई, कुछ कम ज्यादा हो गया, तो हम किसके पास जाके अपनी दुहार लगाएंगे कि हमारे पैसे डूब गए, कंपनी ने हमारे पैसे डुबाए? कोई तो मीडिएटर, गारंटर लगना चाहिए ना। तो एडीआर जीडीआर एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टर के साथ जोड़ता है, राइट। बीच में एक इंस्टीट्यूशन होता है जो नॉर्मली बैंक होती है। तो कंपनी अपने सारे शेयर्स बैंक को इशू करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉट्स, और इन लॉट्स को बनाकर बैंक क्या करती है, रिसीट्स बनाती है जिन्हें हम कहते हैं एडीआर और जीडीआर। इन एडीआर जीडीआर को वो उनके देश के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करती है और फॉरेन इन्वेस्टर इन एडीआर को, जीडीआर को होल्ड करता है। सो फॉरेन इन्वेस्टर हु इज लिविंग इन न्यूयॉर्क हैज बॉट द एडीआर
American depository receipt. As per this depository receipt, he is the holder of the shares which are issued by the Reliance. कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी. कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी. उसके शेयर्स की रिसीट है. सो एडीआर ये प्रूफ है इतने बंच ऑफ शेयर्स रिलायंस के ये फॉरेन इन्वेस्टर होल्ड करता है. कल को कुछ भी कम ज्यादा हो गया तो मध्यस्थी जो है वो पूरी सेटलमेंट करके देगा. वो पूरी सेटलमेंट करके देगा. आया ना? सो एवरी कंपनी who wants to sell its shares or issue its shares to the foreign investors has to follow this route of ADR and GDR, the American Depository Receipt and Global Depository Receipts. American Depository Receipts and Global Depository Receipts are the receipts which have to be issued to the foreign investors. Have to be issued to the foreign investors. So इस तरह से मुकेश अंबानी डायरेक्ट न्यूयॉर्क में जाके रिलायंस कंपनी की लिस्टिंग नहीं कर सकता. इसीलिए उसको ये रूट फॉलो करना पड़ेगा. इसीलिए उनको ये रूट फॉलो करना पड़ेगा जो है एडीआर और जेडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का ये जो रूट है उन्हें वो फॉलो करना पड़ता है. सो इस तरह से एक इंडियन कंपनी एडीआर और जेडीआर के द्वारा किसी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा प्रोक्योर कर सकती है. अब इसके अंदर भले ही सिक्योरिटीज और शेयर्स वो दे रही है, लेकिन ये एडीआर और जीडीआर कंपल्सरीली बोरोड कैपिटल के तौर पे देखा जाता है. अपने इक्विटी शेयर्स का बंच बना के उन्होंने दिया है और उन इक्विटी शेयर्स की एडीआर जीडीआर बनाकर फॉरेन इन्वेस्टर को दी है. तो ये नहीं बोल सकता कि इक्विटी शेयर्स है तो परमानेंट कैपिटल है. एडीआर जीडीआर के द्वारा अगर आप इक्विटी शेयर्स का बंच बनाकर अगर इक्विटी शेयर्स की रिसीट दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो रिपेबल. दैट इज ऑल्सो रिपेबल. ये बात भी समझ लो. सो एडीआर जीडीआर क्या है? बोरोड कैपिटल है. एडीआर जीडीआर क्या है? बोरोड कैपिटल है. और इस एडीआर जीडीआर के माध्यम से हम हमारी इंडियन कंपनी सिक्योरिटीज बेच के फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं. और अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेस्टर परमानेंट आपके देश में रहने वाला नहीं है. आफ्टर अ टाइम पीरियड ही वांट्स हिज रिपेमेंट. सो रिसीट जो इशू की जाएगी वो कितने टाइम पीरियड के लिए है वो उसके ऊपर मेंशन किया जाएगा और उतना टाइम पीरियड के बाद इन्वेस्टर अपने एडीआर जीडीआर देकर ये पैसा अपना रिक्लेम करेगा. अभी ओके, राइट? सो दिस इज हाउ वी रेज अ बोरोड कैपिटल फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर. In India, shares of the company are listed on trade exchange, that is Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. ADR and GDR are the dollar-euro denominated USA and Europe Stock Exchange. As I have told you, अगर अमेरिका के कोई स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई शेयर्स लिस्ट होने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, दे विल बी कॉल्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ADR. लेकिन अमेरिका की सीमाओं को छोड़कर विश्व में और किसी भी देश में अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स जाने वाले हैं एंड दे विल बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ रिसीट्स, दे विल बी कॉल्ड एज GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. लेकिन चलन ये बताता है कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है ADR. GDR उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितनी ताकत अमेरिका के पास है उतनी ताकत विश्व में किसी के पास भी नहीं है. Yes or no? Right? The exchanges on which GDR is traded are as follows: London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Nasdaq Dubai, Singapore Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange. अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है तो ADR, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है तो ADR, not the GDR. Yes or no? Right? Now let's come on to the next heading of borrowed capital, which is commercial banks. अब ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बोरोड कैपिटल है जो हर किसी को पता है, हर किसी को इस बारे में समझ है. बोरोड कैपिटल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है मार्केट में जो आपको पैसा देता है बिजनेस करने के लिए, जिसे हम कहते हैं बैंक. जिसे हम कहते हैं बैंक, कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक लेंड्स लोन टू द बिजनेस and these loans accepted from the commercial banks are nothing but the borrowings or borrowed capital. ऐसे कमर्शियल बैंक से हम बोरोइंग करके, पैसा बोरो करके हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. कंपनी के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बैंक अलग अलग तरह से कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अलग अलग तरह से बोरोड कैपिटल कंपनी को देता है. दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉल लोन्स,
they may be in the form of cash credit, they may be in the form of short term loans, they may be in form of medium term loan, they may be in the form of long term loan, they may be in the form of trade credit, ऐसे not trade credit, they may be in the form of कैश क्रेडिट, राइट, कैश क्रेडिट बोला ना सेकंड पॉइंट में, कैश क्रेडिट, फिर उसके बाद हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये अलग अलग तरह की फैसिलिटीज जो है वो कमर्शियल बैंक मुहैया कराती है अपने कंपनी को और अलग अलग सोर्स, अलग अलग तरीके से कंपनी जो इन कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, टर्म लोन, discounting of bill of exchange, etc., is nothing but a source of borrowed capital. Is nothing but a source of borrowed capital. Commercial bank assist the corporate enterprise for raising the corporate finance by providing borrowed capital, by granting term loans to the companies. जब कभी भी कंपनी कोई एसेट खरीदना चाहती है तो एसेट के लिए एक साथ तो पैसा नहीं ला सकती, तो ऐसे एसेट को लेने के लिए वो क्या करती है, टर्म लोन देती है। लेट से कंपनी को कोई मशीन लानी है बड़ी जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ आज एक साथ तो नहीं है लेकिन 20-20 लाख करके उसका पेमेंट किया जा सकता है, तो 5 साल का टर्म लोन देगी जहां पे आज कंपनी को 1 करोड़ रुपए बैंक देगी और 20-20 लाख करके 5 साल में 1 करोड़ की वैल्यू आपको रिपे करनी है, जिसे हम कहते हैं टर्म लोन। बाय सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, बैंक्स भी क्या करते हैं, बहुत सी बड़ी ब्लू चिप कंपनी जो है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो है, उन कंपनी की सिक्योरिटीज बाय करती है। सो इस तरह से वो उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और कैपिटल में कंट्रीब्यूट करती है। बाय अंडरराइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, अंडरराइटिंग इज अ जॉब वेयर किसी भी इश्यू की गारंटी ली जाती है। शेयर्स विच आर बीइंग इशूड हैव टू बी कंपल्सरीली 90% सब्सक्राइब, 90% से कम सब्सक्रिप्शन आता है तो पूरा की पूरा इशू कैंसल माना जाता है, हाँ या ना, पूरा की पूरा इशू कैंसल माना जाता है, हाँ या ना, राइट। सो बैंक अंडरराइटर के तौर पे काम करता है जिसके लिए अंडरराइटिंग कमीशन उन्हें मिलता है, जहां वो गारंटी लेते हैं कि जो आपने इशू किया है इसका 90% सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, जितना बैलेंस अनसब्सक्राइब्ड है वो खुद सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस्ड मेनी इनोवेटिव स्कीम्स फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट, दे आर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। आपके खाते में बैलेंस नहीं है फिर भी आपको उससे ज्यादा ओवरड्रॉ करने की अथॉरिटी बैंक देता है, दैट विल डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशंस यू आर हैविंग विद द बैंक। नेक्स्ट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक ऐसी फैसिलिटी है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करती है, जहां पर बैंक को हम सिक्योरिटी देते हैं, उस सिक्योरिटी की वैल्यू के अगेंस्ट कैश क्रेडिट मंजूर होती है। अगर आपने बैंक को 1 करोड़ की सिक्योरिटी दी है तो उस 1 करोड़ के अगेंस्ट लेट से 60 लाख रुपए की कैश क्रेडिट आपकी सीसी जो है मंजूर हुई है। कैश क्रेडिट और सीसी एक ऐसा सोर्स है ऑफ रेजिंग कैपिटल जहां पे जैसा लगे, जितनी अमाउंट लगे उतना कैपिटल आप रेज कर सकते हो, बरोबर है क्या? जहां जितना लगे, जैसा लगे आप कैपिटल रेज कर सकते हो। तो जितने वक्त के लिए जितना पैसा उस 60 लाख में आपने यूटिलाइज किया है, सिर्फ उतने ही पैसे के ऊपर आपको ब्याज लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश लोन्स। लोन्स आर गिवन नॉर्मल टर्म लोन जैसा, जहां पे कैश या लोन जो है बैंक देती है उसको रीपे आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं, मेरा पैसा 60 दिन के बाद आने वाला है, लेकिन मुझे आज पैसे की जरूरत है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बैंक में डिस्काउंट करवा कर रकम डिस्काउंट छोड़कर आज ही कुछ रकम मेरे पास ले लेता हूं। सो दीज आर द वेरियस स्कीम्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द क्रेडिट इन अ कंपनी, यस और नो? So this is how the commercial bank is a facilitator for the capital or provides capital to the company, right? Next, financial institutions. अगला पॉइंट क्या है? Financial institutions. Now there are various financial institutions which are also set up for providing borrowed capital to the companies. First, development banks. There are different development banks which are set up by the Reserve Bank of India for meeting up or providing capital or providing borrowed capital to the companies, जिसमें पहले है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से समझ में आता है इस बैंक का स्पेसिफिकली सेटअप इसलिए किया गया है ताकि ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। IFCI, that is Industrial Finance Corporation of India, again this is a form of organization which is set up by the RBI
for providing credit to the industrial sector. ICICI Industrial Credit and Investment Corporation of India is again a financial institution which is set up to meet up the requirements of the capital of the industrial sector. Small Industries Development Bank of India, SIDBI Bank. Now these are the financial institutions which are set up with a particular purpose, and they provide capital or assistance, or they provide borrowed capital to specific class of companies with the goal for which they have set up. IDBI is set up for promoting industries. It won't provide capital to the agricultural sector. NABARD is set up for agriculture sector. It won't provide capital for the industrial sector. This Small Industrial Development Bank is set up for small industries. जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेफिनेशन में बैठेगा उसी को ये कंपनी कैपिटल प्रोवाइड करेगी, क्रेडिट कैपिटल प्रोवाइड करेगी. इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI बैंक. अब ये बैंक सिख कंपनी के लिए बनाई है, तो जो सिख कंपनी है स्पेसिफिकली उन कंपनी को पैसा कोई नहीं देता, उन कंपनियों को क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध करा के दे, इसीलिए इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया का सेटअप RBI के द्वारा किया गया है. नेक्स्ट, financial institution. Now these development banks are set up by the RBI to develop the several sectors. Next, financial institutions. Now again there are certain institutions in the market which provide capital to the corporate. जिसमें पहला आता है RCTC, Risk Capital Technology Finance Corporation Limited is one of the financial institution which provides capital or credit. Now these are all these names, development bank, financial institution, whatever we are going to look into, are all the institutions or all financial institutions जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं या क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं और बोरोड कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, जहां से बोरोड कैपिटल आप रेज कर सकते हो. अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो स्मॉल SIDBI बैंक से वो कैपिटल जो है, बोरोड कैपिटल जो है वो रेज कर सकता है. राइट. नेक्स्ट, Technology Development and Information Company of India Limited. Next, Tourism Finance Corporation of India Limited. Now tourism finance ये नॉर्मली किसको देगा, किसी सेक्टर में टूरिज्म डेवलपमेंट, जैसे वाराणसी में अभी टूरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पे जो होटल होगा उसको अगर फाइनेंस है ये टूरिज्म वाले के पास वो जाकर इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज कर सकता है. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, LIC, UTI and GIC. Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India and General Insurance Corporation of India are the institutions which are investment institution. ये बोरोइंग नहीं देती लेकिन कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है. जैसे LIC प्रॉमिस करते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. सिर्फ प्रीमियम आप पे करो, अगर आपके साथ कुछ दुखद घटना हो जाती है तो आपकी जितनी पॉलिसी वैल्यू है उतनी आपके परिवार को मिल जाएगी. इसीलिए जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. तो इतना पैसा वो कहां से जनरेट करती है, बाय द इन्वेस्टमेंट दे मेक इन द कंपनी. LIC, UTI, GIC ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास कैपिटल बहुत बल्क में है, तो ये क्या करते हैं, शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर रिटर्न जनरेट करते हैं और उन रिटर्न से ये जो पॉलिसी मैच्योर होती है या कोई पॉलिसी को पेमेंट करना होता है वहां से वो पेमेंट करते हैं. तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल किसके पास रेज होगा, कंपनी में. लेट्स से LIC वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस. LIC वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस. सो अपने आप रिलायंस के पास क्या आएगा, कैपिटल आएगा. नाउ दिस सोर्स ऑफ कैपिटल इज आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन वेयर LIC इज इन्वेस्टिंग इन द डिबेंचर्स ऑफ द रिलायंस कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन are the financial institutions which are set up by the state government for providing finance or credit to the companies. Yes or no? The above mentioned institution provide financial assistance in the following form. इतने सारे जो हमने नाम देखे, इतने सारे जो टाइप्स देखे, जैसे कि जिसमें पहला क्या था, डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेटअप बाय द स्टेट. क्या, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस. तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो सेटअप किए गए हैं ये सब सेटअप किए विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग टर्म लेंडिंग फैसिलिटीज. टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए सेटअप किए गए हैं. टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज करते हैं LIC जैसे. टू अंडरराइट द इश्यू ऑफ द सिक्योरिटीज.
इनमें से कुछ बैंक छोटे मोटे कंपनियों के अंडर राइटिंग भी कर सकती है। टू लैंड मनी, इन कंपनी को पैसा उधार देने का या लोन देने का काम भी करती है। एंड टू गारंटी द टर्म लोन रेज्ड बाय द कंपनी, अगर अंडर राइटर है तो उन्होंने अगर कोई गारंटी ले रहा है तो गारंटी, जैसे अभी क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल इंडस्ट्री के पास उतना पैसा नहीं होता, उन्हें क्रेडिट की जरूरत है। कमर्शियल बैंक आर नेग्लिजेंट टू प्रोवाइड लोन्स टू द स्मॉल इंडस्ट्री, तो SIDBI बैंक क्या बोलता है, बड़ी बैंक को तुम पैसा दो, स्मॉल इंडस्ट्री की गारंटी हम लेते हैं। सो दिस इज आर द वेरियस फैसिलिटीज हाउ these all organizations, state level, finance, investment, these all organization helps in procuring or raising finance for the company. Yes or no? Yes or no? Hi or na? Moving on to the last point of this particular chapter, that is trade credit. इसे बहुत सिंपल भाषा में समझा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं उधार बेचना। क्या बोलते हैं हम इसे? उधार बेचना, उधार खरीदना, जिसे हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी का पैसा रेस करना है, कंपनी का पैसा कम नहीं करना है, तो उधार बेचने का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उधार खरीदने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी को कैपिटल बढ़ाना है, कंपनी का कैपिटल कम करना है क्या? नहीं। उधार बेचेंगे तो कंपनी का कैपिटल कम होगा। सो ट्रेड क्रेडिट इज रिस्पेक्ट टू द ट्रेड क्रेडिट वी गेट, द क्रेडिट फैसिलिटी वी गेट फ्रॉम आवर सप्लायर्स और परचेजर्स। जैसे इनका इथेनॉल प्लांट है, अब इथेनॉल प्लांट के अंदर अलग अलग रॉ मटेरियल लगते हैं, उनमें से एक रॉ मटेरियल लेट से कुमकुम प्रोवाइड करती है। कुमकुम जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो जब कभी भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसका पैसा अपने को इमीडिएटली देना पड़ता है, क्योंकि क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है। कुमकुम ने कहा ठीक है, आप महीने टू महीना परचेजिंग करो, जितना भी आपका मंथ का आउटस्टैंडिंग होगा आप अगले महीने के 10 दिन में या 15 दिन के 15 तारीख से पहले मुझे रिपे कर देना। तो इस हिसाब से शी इज प्रोवाइडिंग 45 डेज ऑफ ट्रेड क्रेडिट टू द इथेनॉल प्लांट। महीने के 30 दिन, आगे के 15 तारीख, 45 दिन का टाइम वक्त दिया है, जहां पे कंपनी 45 दिन तक कुमकुम से जितना चाहे उतना रॉ मटेरियल खरीद सकती है, और इस खरीदे गए रॉ मटेरियल को 45 दिन के अंदर पेमेंट कर सकती है। तो 45 दिन के लिए लेट से 10 लाख रुपए का मटेरियल इथेनॉल के प्लांट को गया है, तो 45 दिन तक ये 10 लाख रुपए पेमेंट देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये जो फैसिलिटी जो मिली है, जिसमें बिना पैसे के भी बिजनेस में काम चल रहा है और जिसमें बिना पैसे लगाई रॉ मटेरियल रेस किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। जब कभी भी हम मार्केट में रेगुलर ट्रेड के जैसे जब हम क्रेडिट पे उधार पे चीज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। अब इसके अंदर ये जो 45 डेज का टाइम पीरियड इन्होंने दिया है, ये क्या है? ट्रेड क्रेडिट। और 45 डेज के बाद इथेनॉल प्लांट से बरोबर पेमेंट ये जो कुमकुम को चला जाना चाहिए। इस टर्म को हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, जहां बिना पैसों के भी कैपिटल रेज किया जा सकता है। नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट, क्रेडिट इज द सोल ऑफ द बिजनेस, ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। मैक्सिमम ट्रेड क्रेडिट 60 डेज का हो सकता है। कितना होगा? कोई भी दे दे के 60 डेज, लेकिन कोरोना के काल से तो अभी 15 दिन के अंदर ही आ गया, 30 दिन के अंदर ही आ गया। लेकिन एक बिजनेस में कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहां पे 60-60 दिन का भी क्रेडिट, जैसे कपड़े का बिजनेस है, कपड़े के बिजनेस में कस्टमर का डेली बेसिस पे नहीं आता, तो नॉर्मली उस इंडस्ट्री में अगर क्लॉथ इंडस्ट्री में देखें तो 60 डेज क्रेडिट प्रिवेल करता है रिटेल पे। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो क्लॉथ फैक्ट्री है वहां पे 90 डेज का भी क्रेडिट चलता है। अब वो डिपेंड करता है कंपनी के और उस सप्लायर के रिलेशन के ऊपर। सर नो, राइट? हाँ या ना? अब मैं रेमंड जैसे कंपनी को कपड़ा सप्लाई कर रहा हूं, उन्होंने बोला 90 डेज क्रेडिट। रेमंड जैसे कंपनी पैसे डुबाने वाली है क्या? और वो ऑर्डर भी कैसे देगी? बल्क में देगी, तो मैं 90 डेज के लिए मान भी जाऊंगा, राइट? सो इट ऑल डिपेंड। सो अभी रिलायंस रेमंड कंपनी को 90 डेज का क्या मिल रहा है? ट्रेड क्रेडिट। बिना उधारी के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता। सो दीज आर ऑल द सोर्सेस ऑफ borrowed capital, right? So after all the discussion, we finally complete the discussion on chapter number 2, that is sources of finance. So what we have learned in this chapter कि secretarial practice 12th standard का revolves around the concept of corporate finance, जहाँ पे corporate finance is concerned with two decision of financial decision and investment decision. Financial decision talks about how we raise the finance, and investment
decision talks about how we are going to invest the money which is being raised. Financial decision is all about raising of finance. Raising of finance can be done from various sources, and that all sources of finance we have learned in this chapter, where we have seen sources of finance are either owned capital and borrowed capital. What are the different sources of owned capital we have seen in short and detail. What are the different sources of borrowed capital we have seen short and detail. In coming chapters, out of all these sources, we are going to discuss in detail about certain sources of finance. So I hope everything is very much clear and you enjoyed the revision session. That's all for today. I'll be posting this video lecture in an hour on YouTube, and I'll send the link accordingly. So that's all for today. See you in the next revision session. Thank you so much.